My dear friends and students, I welcome you again on my YouTube channel Education for Innovation. Today, I am going to discuss about the Python fundamental. This is the next chapter in the CS and IP curriculum. So, Python fundamental. Before starting this chapter, in the last video we have discussed about the what is the introduction of Python programming language. हमने last video के अंदर पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था. So what we have covered in the last video, let me revise. See this, we have covered what is Python. It is the highly powerful object oriented programming language. We have covered this, what is Python. Then what are the features of Python? This is very easy language. It has large sets of predefined functions. That means that it has a large set of library and all these things. What are the features of variety of uses, object-oriented programming? We have covered all these points. Then how to install the Python? Uh, we can use Python programming language at many platforms like we use Ideally definitely, and we can use Anaconda that provide Spider or Jupyter. And if you don't want to install, then we have Colab, Google Library, Google Laboratory. You can use that. Okay. Then after that, how to work with the Python? In the Python, we can work in two modes. One is the interactive mode and second is the script mode. Okay. Then after that, we have covered two program, not a simple single addition of two number. We have covered another program that is used to calculate addition, subtraction, multiplication, division, all the arithmetic operations. Okay, we have covered all these points in the previous video, and thanks for watching that previous video. And I have received many mail related with the doubts in the last video. The few doubts related with the input functions. काफी सारे स्टूडेंट्स के मेल मेरे को रिसीव हुए हैं जिनमें काफी सारे स्टूडेंट्स को इनपुट फंक्शन में डाउट है. उसके बारे में बात करेंगे. एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर आपने आइडियली के ऊपर प्रोग्राम रन करना है, वो तो आपने डेमो के थ्रू बता दिया था, बट यू हैवंट कवर्ड हाउ टू रन प्रोग्राम ऑन द स्पाइडर एंड जुपिटर. Okay, so before starting the Python fundamental, let me show how to create the program in the Spider and Jupyter first. Then after that we will start the Python fundamental. Okay, it's very good for me that you are taking interest and you are forwarding mail to me and you are asking the doubt. आप मेरे से doubts पूछ रहे हो mail के through, बहुत अच्छी बात लगी. You can write down your doubt in the comment section also. Okay, so uh, we have used Ideally in the last video. So again you can use any platform, there will be no problem. So how to use Anaconda, if you want to open the Anaconda, so firstly लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे. सो सपोज दैट आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है आइडियली के फॉर्मेट में या फिर एनाकोंडा भी आपने यूज में लिया हुआ है. सपोज दैट आपने एनाकोंडा डाउनलोड किया हुआ है. सो देखिए ये तो है एनाकोंडा नेविगेटर. आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में एनाकोंडा नेविगेटर ओपन होगा. वहां से आप अपने चाहो तो आप जुपाइटर ओपन कर सकते हो, चाहो आप स्पाइडर ओपन कर सकते हो. मैं डायरेक्टली यहाँ पर जुपाइटर को ओपन कर रहा हूँ. जुपाइटर क्या है, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा जो बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है उसके अंदर ओपन होता है. ओके, देन जैसे ये ब्राउजर के अंदर ओपन हुआ, देखिए बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर के अंदर ओपन होगा आपका. एंड यहाँ पर आपको जाना है न्यू के ऊपर. न्यू के ऊपर क्लिक किया, देन पाइथन 3. ओके, देन ये देखिए यहाँ पर आपके पास में ये जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पर आपको अपना कोड स्पेसिफाई करना है. ठीक है, सो हमने जो प्रोग्राम लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किया था, मैं अब थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ. एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, एक ही प्रोग्राम बार बार में करना ठीक नहीं है. ओके, सो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो आपकी बुक के अंदर भी होगा, आई थिंक सुमिता अरोड़ा के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर भी मिलते हैं. कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो आई एम राइटिंग कमेंट calculate
simple interest, SI यूज में ले रहा हूँ. Okay, calculate SI, and for the SI formula is P into R into T divided by 100. This is the formula. Principal amount into rate into time divided by 100. This is the formula for the simple interest. So for that we will require three values. So I am taking three values as input. I am using one amount variable, amount. Then lot of students has doubt in this. Why I have used int, why I have used input. Okay, so I will discuss it again here in this video. Enter value for principal amount. Okay, यहाँ पर आपको एक वैल्यू इनपुट में लेगा ये आपसे. Then after that we will require rate also, and here in place of int you can use float also. Suppose that you want to use decimal values, आपको रेट की जो वैल्यू डेसिमल में चाहिए तो आप यहाँ पर फ्लोट भी यूज में ले सकते हो. ओके, दिस इज द डेटा टाइप, देन इनपुट, then enter value for rate. Okay, then definitely time is also required, so I am taking the time in the integer format. Then to take input from the user we use input function, enter value for time. Okay, so here we have taken three value as input from the user. With the help of keyboard the user will enter the value. Then after that we want to perform simple interest. So the formula for the simple interest is amount into rate into time, then divide by 100. Okay, you can put it in the bracket also. Okay, but it's not compulsory because the expression will be executed left to right, then there will be no problem. And multiplication and division sign has the same precedency. We will discuss about the what are the operator precedency. Okay, we will discuss it in the next video. Now after that we want to print the result, so we have print statement. Then you can use any string. Here I am using result. You can use simple interest is, your interest is, you can write such type of things, then SI. Okay, now your code is completed. Now in this code we have taken three value as input. Okay, so to run the program, see this is the run button. Okay, just click on it. When you click on it, it will ask the value amount. Suppose that you have entered 20,000 amount, and suppose the rate is 12 and the time is 5. Okay, so these are the input values, then the result will be 12,000. So this is the way how to create the program in the Jupyter notebook. Okay, now I am just copying the code. इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से, क्योंकि बार बार में टाइप नहीं करना होगा मेरे को. एंड नाउ हाउ टू रन द कोड इन द स्पाइडर. सो एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर एक यू कैन से दिस इज द अम्ब्रेला थिंग वेयर वी हैव वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स. जुपाइटर वेब पेज के लिए हम यूज में लेते हैं जो ब्राउजर के अंदर ओपन होता है. देन वी हैव स्पाइडर ऑल्सो. ओके, सो जैसे आपने स्पाइडर को ओपन किया, बाय डिफॉल्ट ये see spider is opening. Then just wait for a few seconds. Now see, यहां पर आपके सामने कोड आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, if you want to create the new file, just click on the file menu. Okay, and you can go for the new file. Then here see the pointer, paste your code here. आपको कोडिंग में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. कोडिंग में कभी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने केवल प्लेटफॉर्म को चेंज किया है. कोड वो का वही रहेगा. नाउ रन द कोड. ओके, ये रन बटन है. आइडियली के अंदर भी हम F5 यूज में लेते हैं कोड को रन करने के लिए, इसमें भी F5 यूज में ले सकते हो. और स्टार्ट बटन आपके पास में. प्ले किया. सी दिस इज द आउटपुट विंडो. हियर यू कैन स्पेसिफाई योर वैल्यूज. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यूज. ओके, suppose the rate is 12.5 because I have used here float, so I can use. Then the time is 10. Okay, so the result will be this. Okay, so in the ideally this is the output window. Okay, and here this is the coding window. Here you can type the code. So
the coding remains same. If you want to run this code in the ideally, then see, you can use it in the ideally also. This is the ideally. I think all of you know about how to open the ideally. Now just paste it, and code is same. Especially you have to save it. I am going to give the name SI. Okay. Uh, Now it will ask the value, specify the values, then after that time 30. So this is the result. Okay. तो आपकी कोडिंग हमेशा सेम रहने वाली है, कोडिंग में कोई चेंज नहीं करना है। आप जो प्लेटफॉर्म यूज में लेना चाह रहे हो वो ले सकते हो। यू कैन यूज आइडियली एक लाइट सॉफ्टवेयर है, वो यूज में ले सकते हैं हम, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। एंड ये आपकी बुक भी आइडियली के ऊपर ही डिपेंड कर रही है पूरी। देन इवन स्पाइडर ऑल्सो, यू कैन यूज स्पाइडर, यू कैन यूज जुपिटर। ओके। एंड कोलैब गूगल लेबोरेटरी है, उसको भी हम यूज में ले सकते हैं। ओके, दिस इज द डाउट नंबर 1 फ्रॉम द लास्ट वीडियो। Many students has doubt in this, so I think it's clear to all of you now. Okay, now the next point, the next thing, uh, many students have doubt in the input statement. Why I have used input function? I think ये तो सभी को क्लियर है, बट उसके आगे int क्यों यूज में लिया? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है उसकी यदि हम बात करें तो देखिए, in the Python programming language, if you want to get input from the user, we have to use input function. Okay, आपको क्या यूज में लेना होगा? आपको input function यूज में लेना होता है। Okay, but input function की एक लिमिट है, you can use only string data as input. Okay, that means यदि आपने किया ना a equal to input, so आपसे एक वैल्यू मांगेगा और वो वैल्यू सपोज दैट आपने किया है 20 एंटर कर दिया। ओके, बट with the effect of this input function, the 20 will be enclosed in the double quotes, and in the Python, anything that is enclosed in the single quotes, in the double quotes, or in the triple quotes will be considered as a string. ओके, उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? उसको स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। डेफिनेटली हमने जो नंबर एंटर किया था इनपुट के अंदर वो हमने 20 एंटर किया था, बट द इनपुट फंक्शन इन द पाइथन इज यूज्ड टू टेक द डेटा ओनली इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। हमने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की थी, बट इनपुट ने क्या किया? उसके ऊपर कोड्स अप्लाई कर दिए। कोड्स अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी हैव डेटा इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट एंड वी वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, so I think all of you know about it. With the string data, we can't perform any operations. We can't perform arithmetic operations. Okay, so we have to convert it into the numeric number के अंदर convert करना है। Okay, either in the integer or in the float. Okay, so to convert string data into the numeric format, we have to use typecasting. What? We have to use typecasting. Okay, so and to perform the typecasting we have the typecast operator int. Okay, so इस वजह से हमने क्या किया था? हमने इस इनपुट फंक्शन को किस में लिया? एक ब्रैकेट लगाया बाहर और इसके बाहर int कर दिया था। इसका रोल क्या रहा? जैसे ही हमने अब इसके अंदर जैसे ही हमने किया a इक्वल टू int input, then here you can specify any string. इफेक्ट क्या रहा? आपने यहां पर 20 एंटर किया, इनपुट ने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 20 किसके इनपुट में गया? int के इनपुट में गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 20 आएगा। उसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। ओके, this is the concept of typecasting and why we will require this, why we have to do this, क्यों करने की रिक्वायरमेंट है? बिकॉज हमें क्या करना था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, उसका पावर फाइंड आउट करना था, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है।
ओके, सो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द पॉइंट इज द नेक्स्ट. आई थिंक मैंने सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है कि लास्ट वीडियो के अंदर जो भी डाउट थे और लास्ट वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए थे, आज हम बात करते हैं. अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन फंडामेंटल की. सो पाइथन फंडामेंटल है क्या चीज? देखिए, जैसे हर एक कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं. जैसे हम उसके अंदर अल्फाबेट्स भी यूज में ले सकते हैं इंग्लिश के अंदर, उसमें हम सिंबल्स भी यूज में लेते हैं, उसमें हम डिजिट्स भी यूज में लेते हैं. काफी सारे रूल्स भी हमें फॉलो करने होते हैं जिसको हम ग्रामर रूल्स बोलते हैं. एज इट इज सेम, काफी सारे रूल्स हमारे पास में. पाइथन भी एक लैंग्वेज है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, इस वजह से इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. नाउ सो इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या क्या इसकी बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर व्हाट इज कैरेक्टर सेट, tokens, variables, dynamic typing, and in this chapter you have to cover data type and operator, but these are I will cover data type and operator in different video. Okay, so here we will cover only here I am not going to cover in this video data type and the operator. We will cover what are the character set, what are tokens, variable, and the dynamic typing. This is very interesting fact of the Python dynamic typing. Okay. Now let's begin with the character set. Character set है क्या चीज? देखिए, you can see the definition of the character set at your screen. Like I am talking about the English language. In the English language, what we can use? We can use alphabets. We can use small alphabets. Can we use digits? नंबर्स भी आ सकते हैं क्या इंग्लिश में? बिल्कुल आ सकते हैं. लाइक माई परसेंटेज, माई लास्ट क्लास परसेंटेज इज 95. सो व्हाट वी राइट? 95, 95 इन द नंबर्स. माई डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर इज 1990. ओके, सो उसको भी हम नंबर्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं. सो वी कैन यूज 0 to 9 नंबर्स ऑल्सो. एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन यूज सिंबल्स ऑल्सो. क्वेश्चन मार्क भी लेते हैं, पोस्ट ऑफ यूज में लेते हैं, कॉमा साइन यूज में लेते हैं, डॉट सिंबल यूज में लेते हैं, फुल स्टॉप. ओके, सो इफ यू सी कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स, यदि हम इन सभी की बात करते हैं तो ये सभी क्या है? ये सभी मिलके क्या कर रहे हैं? ये सभी मिलके इंग्लिश लैंग्वेज को बना रहे हैं. दैट मीन्स ये उन सभी सिंबल्स का कलेक्शन है, उन सभी करेक्टर्स का कलेक्शन है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकती है. ओके, तो उसको हम इन सब चीजों को मिला के यदि इन सबको एक सिंगल नेम यदि हम प्रोवाइड करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टर सेट बोलेंगे. ओके, let's see the definition of the character set. It is a set of valid character that a language can recognize, that a language can identify. Okay, like if you see in the Python programs, पीछे हमने Python प्रोग्राम जो किए थे उनमें आप लोगों ने देखा हमने अल्फाबेट्स यूज में लिए थे. कैपिटल और स्मॉल दोनों आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन यूज डिजिट्स ऑल्सो, आपने नंबर्स भी यूज में लिए थे. एंड वी हैव यूज्ड मेनी सिंबल्स ऑल्सो. ओके, आपने प्लस माइनस भी लिए हैं, आगे जाके और भी काफी सारे सिंबल्स आएंगे. ओके, इन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? करेक्टर सेट बोलते हैं. ओके, नाउ एक, यदि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा सी एंड सी प्लस प्लस, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एंड सी प्लस प्लस. ये दोनों एक करेक्टर सेट सपोर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ASCII. ओके, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके, ये करेक्टर सेट है जो अप टू 256 करेक्टर्स को सपोर्ट करता है. ओके, एंड द पाइथन विल वर्क, पाइथन एंड जावा प्रोग्रामिंग, दीज टू लैंग्वेजेस यूज द यूनिकोड करेक्टर सेट. यूनिकोड करेक्टर सेट एक ऐसा करेक्टर सेट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं ये उन सभी को यूज में ले सकता है, उन सभी को आइडेंटिफाई कर सकता है. ओके, so the Python use Unicode character set. All right, so this is the definition of character set. This is the very first topic of Python fundamental chapter in your book. Okay, in the both CS and IP दोनों के अंदर है Python fundamental और सबसे पहला जो टॉपिक है वो character set है इसमें.
Then the next topic is tokens. So let's move to the token. Now, tokens. Tokens टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम. आपने प्रोग्राम बनाया, पीछे हमने प्रोग्राम बनाए थे 2-3, तो उसके अंदर जो छोटी सी छोटी यूनिट है आपकी, उसको हम टोकन बोलते हैं. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, राइट? See, this is the definition, and we have 5 type of token, but before starting this I am going to write a statement here. आपने प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा था. सपोज दैट आई हैव रिटन हियर a equal to 50 and b equal to 100, c equal to a plus b. If you see here, these are the collection of statements, right? Now, according to this definition, according to the tokens definition, the smallest individual unit of the program is known as token. So this is the part of program का ही एक part है. Can you identify which is the smallest individual unit? जनरली मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से, तो मेरे को आंसर क्या मिलता है? सर, ए इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं इक्वल टू है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं 50 है, ओके. कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है कि प्लस है, ओके. और ये सभी करेक्ट भी हैं, ये सभी करेक्ट भी हैं. आपको प्रोग्राम में जो चीज दिखाई दे रही है, कुछ भी हो, चाहे वो टोकन होगा वो, बिकॉज ए प्रोग्राम इज द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टोकन्स ओनली. आपके प्रोग्राम में टोकन्स के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ओके. सो नाउ वी हैव 5 टाइप ऑफ टोकन्स. लाइक ए का एक पर्टिकुलर टास्क है, ये कुछ आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई बोलते हैं. ये इक्वल टू साइन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, बट पाइथन के अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये वैल्यू को साइन करवा रहा है. 50 एक फिक्स वैल्यू आ रही है, प्लस एक ऑपरेटर है, ओके. सो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर डिफरेंट मीनिंग है, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. और ये जो इनकी जो वर्किंग है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में पाइथन में 5 टाइप के टोकन्स है. इन द पाइथन वी हैव 5 टाइप ऑफ टोकन्स. दीज आर आइडेंटिफायर, keywords, literals, punctuators, and the last is operators. Okay, we have 5 type of tokens. You can note it down. This is very important thing for the 11th class. We have 5 type of tokens. These are the identifier, keywords, literals, punctuator, and the operator. So we will discuss one by one what are the identifier. The first point, identifier mean like your name. Suppose that one student Aman is here, okay. Suppose that एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ओके. उनमें से एक टीचर को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना, तो वो क्या करेगा? उसका नेम यूज में लेगा, ओके. नेक्स्ट, आई एम टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल. सपोज दैट आपका जो क्लास बैग है, आपका जो स्कूल बैग है, उसके अंदर आपके पास में 5 डिफरेंट सब्जेक्ट की नोटबुक रखी हुई है और 5 नोटबुक्स आपके पास में, ओके. और उन सभी नोटबुक्स का क्या है? कवर पेज बिल्कुल एक जैसा है, सेम. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फिजिक्स की नोटबुक है, ये मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक है, ये मेरी सीएस और आईपी की नोटबुक? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके ऊपर हम एक टैग नेम डालते हैं. ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, ये मैथ्स की है, राइट ना? यही करते हैं हम, राइट. सो ये टैग नेम क्या कर रहा है? PHY. ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी नोटबुक को आइडेंटिफाई करवा रहा है. ये अमन क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करवा रहा है. ये सभी हैं क्या चीजें? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स हैं, जो किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, ओके. तो जो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करवाए उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर, ओके. लेट्स सी दैट डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर. These are the fundamental building blocks of a program and are used to give naming for the variables, constant, okay, modules, classes, list, right. जो भी हमारे पास आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो हम क्या यूज में लेते हैं? किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेम यूज में लेते हैं, और उन्हीं नेम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ओके. बट जैसे आपका नेम है, यदि हम आपके नेम की बात करें, आपकी डेफिनेटली
आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे क्लास के अंदर हैं, वो उनका नेम 9829 नहीं होगा। श्योर हूं ना मैं? 9829 किसी का नाम नहीं होगा, @ किसी का नाम नहीं होगा, .com किसी का नाम नहीं है। आपके नेम के पीछे एक लॉजिक है, आपके पेरेंट्स ने बहुत ही सोच समझ के आपका नेम रखा है, जो डिपेंड करता है हमारे रिलीजन से भी, हमारी हम लोकेलिटी हमारी क्या है, हम कहाँ पर रहते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम काफी सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। ओके, एज इट इज सेम इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ यू वांट टू गिव एनी नेम for the part of program, if you want to give any name for the variable, for the module, or for any other thing, then we have to follow certain rules. And this is very important topic, what are the identifier naming rules. So I think ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आइडेंटिफायर होते क्या हैं। आइडेंटिफायर बेसिकली है क्या चीज, नेम प्रोवाइड करते हैं पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को। दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके, नाउ आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, the identifier name can contain only the alphabets. We can use capital and small alphabets. Okay. We can use numbers, and we can use only one special symbol, that is underscore sign. Okay. Other symbols are not allowed. Okay. So in the identifier, according to the identifier naming rules, in the Python identifier, we can use small and capital alphabets. We can use 0 to 9 digits, and we can use only one symbol, that is underscore sign. This is the rule number 1 for the identify naming rules. Okay. So that means if I write one identifier according to these rules, if I want to declare a variable a1, this one is completely valid, right? But I want to ask one more thing. According to this rule, 1a is also valid, right now, but this is invalid. So let me show you the next rule for the identify naming rules. So identify name should not start with the digit. आपका जो नेम है वो अल्फाबेट्स और नंबर कंटेंट रख सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, बट जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेकंड रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये इनवैलिड होगा। ओके, सो A1 is valid but 1A is invalid. Clear? Now move to the next one. The identifier name can contain only the underscore symbol, other symbols are not allowed. I think this is clear. Now the next point is identifier name can be of any length. जितना बड़ा आपको नेम यूज में लेना है उतना बड़ा ले सकते हो, लेकिन टाइप तो आपको ही करना आखिरकार। आइडेंटिफाई आपको करना है तो आपको याद रखना होगा क्या हमने जो वेरिएबल नेम यूज में लिया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आगे आएगा ये पॉइंट। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हर एक चीज का ध्यान रखना है। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, वेरिएबल नेम वो यूज में लेते हैं जो हमें याद भी रहे। जैसे आपको टोटल मार्क्स वेरिएबल लेना है। ओके, सो सबसे पहली चीज तो एक नेक्स्ट रूल आएगा आपका, टोटल मार्क्स। अभी इतना बड़ा वेरिएबल लेना चाहो तो इतना बड़ा वेरिएबल ले लो, और यदि टीएम से रिप्रेजेंट करना चाहो तो टीएम से रिप्रेजेंट कर लो, इट्स ऑन अप टू यू। ओके, बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, स्पेस आर नॉट अलाउड। ओके, दैट ये जो आइडेंटिफायर्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट रूल। ओके, नाउ पाइथन इज केस सेंसिटिव। सो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऊपर वेरिएबल जो डिक्लेयर किया कैपिटल ए कर दिया, इसको वैल्यू 50 असाइन करा दी, आगे जब आप प्रिंट ए कर रहे हो तो ये एरर शो कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो कैपिटल ए है और यूज में क्या लेना चाह रहे हो, स्मॉल ए यूज में लेना चाह रहे हो, तो ये एरर शो कर देगा। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट रूल दैट इज the keywords can't be used as an identifier. The reason behind that we will discuss it in the next point, because keywords are the tokens also. Okay, so इसको हम next point में discuss करेंगे। ठीक है, then ये पहले ही कवर कर चुका हूं मैं, space are not allowed, like the in the total marks if you see I have used here underscore marks. Okay, so
These are the certain rules. If I repeat it again, the keywords, the identifier name can contain alphabets, numbers, and only the underscore sign. Other special symbols are not allowed. You can use only the underscore sign. Okay. Then the name should not begin with the number. Number से कभी भी start नहीं होना चाहिए. Okay. Then it can be of any length. जितनी length आपको लेनी है उतनी आप ले सकते हो. Python is case sensitive. Case sensitive का मतलब क्या होगा? Capital और small alphabet different treat होंगे. Okay. So if you have declared any variable with the capital alphabet, so throughout the program आपको उसको capital ही रखना होगा. यदि small में लिया है तो small रखोगे. Okay. Space are not allowed. And the last point is keywords can't be used as an identifier. इसके पीछे रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट कीवर्ड वाला जो टोकन हम कवर करेंगे उसके अंदर कवर करेंगे. Okay. Now I have a very small exercise for all of you. Find out the valid and invalid identifiers. Okay. So मैं यहाँ पर कुछ नेम्स आपको बता रहा हूँ. आपको कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करना है कि कौन से तो ये वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं. यदि इनवैलिड है तो उसके पीछे रीजन भी मेंशन करना है. आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आप चाहो तो मेल कर सकते हो. ओके. नाउ इसके अलावा मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और लेता हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ एक्चुअल में जो नेमिंग रूल्स है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वैलिड है ये इनवैलिड है. सो एक जैसे मैंने एक नेम लिया, जैसे मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया, सॉरी मैंने एक नेम ले लिया सम. अब ये वैलिड है और इनवैलिड है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सारे रूल्स को अप्लाई करके देखना है. कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, स्पेस भी नहीं है, स्पेशल सिंबल भी नहीं, स्पेशल ऑपरेटर भी नहीं है, स्पेशल कीवर्ड भी नहीं है, तो सारे रूल्स को फॉलो करें, दैट मीन्स ये वैलिड है. ओके. ठीक है. अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूं, जैसे मैंने किया फिजिकल एजुकेशन को स्टोर करना है, p.edu ले लिया मैंने. तो क्या ये वैलिड है और इनवैलिड है? डेफिनेटली ये इनवैलिड है. कैसे पता लगा? According to the rules, identify enemy rules, special symbol are not allowed. You can use only one underscore sign. So dot symbol जो आपने लिया है ना, ये invalid है. Generally हम क्या करते हैं, num1 ऐसे करते हैं, number 1 डॉट लगा देते हैं. So ये invalid होगा, right? एक और नेम मैंने लिया ABC. इट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट. आगे जाके मैंने एक और ABC इसके आगे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एक नेम है, बीच में कोई गैप नहीं है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, वैलिड होगा. क्लियर है? सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज वैलिड एंड विच वन इज इनवैलिड आइडेंटिफायर. क्लियर? नाउ इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिफायर. ओके. आइडेंटिफायर, यदि हम डेफिनेशन की बात करें, आइडेंटिफायर आर द नेम बिल्डिंग ब्लॉक्स and are used to give naming for the variables, constant and the part of the program, you can say module. Okay. Now after that we have covered what are the identify naming rules. Okay. Then ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप ट्राई करोगे तो इजिली पता लग जाएगा. देन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपके पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, OTQs आएंगे, उनमें वैलिड और इनवैलिड फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली पेपर सेटर जरूर डालता है, तो इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट इज द कीवर्ड्स. Keywords are the reserved word and has some special meaning for the programming language. Okay, forget about this definition. I want to just ask one thing. What is this? क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? क्या बोलते हो आप इसको? कैपिटल ए, इसको हम कैपिटल बी बोलते हैं, राइट ना? लेकिन यदि इसकी बात करें तो आप इसको क्या बोलोगे? बीटा. ये बी से बीटा कब बन गया? थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब ये बीटा बन गया. लेकिन किसी भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे से यदि आप पूछोगे तो वो क्या बोलेगा? भैया आपको बी बनाना नहीं आता प्रॉपरली, ये इतना बड़ा नहीं होगा. उसको नहीं पता बीटा क्या है. आपको कब पता लगा? जब आप फिजिक्स के अंदर आए थे तब आपको पता लगा कि ये बीटा होता है, राइट ना? सो बेसिकली ये है क्या चीज? यदि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम नो ओनली 0 and 1, राइट? सो
ए बी सी जो भी हम टाइप कर रहे हैं ये इंग्लिश के लिए अल्फाबेट्स है, बट कंप्यूटर के लिए क्या है, दीज आर द सिंबल्स ओनली. Okay, and they have some special, they are, these alphabets are reserved in the English language. This symbol I am using the word symbol. This symbol is reserved for the capital A for apple, right ना. सभी बोलेंगे सर A for apple, right? Okay, because जब इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा था उस टाइम इस सिंबल को रिजर्व कर दिया गया कि इसको हम आप A for apple बोलोगे, इसको आप बी बोलोगे. देन फिजिक्स के अंदर इस एक सिंबल की रिक्वायरमेंट थी. ओके, इसके लिए बीटा को बनाया गया. ओके, बी बी फॉर बीटा, तो ये इस सिंबल को बी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके बीटा बना दिया गया. ओके, राइट. सो बेसिकली है क्या चीज, दीज आर द सिंबल्स. ये सिंबल है, लेकिन यदि मैं आज आपको बोलता हूं इसको ए नहीं बोलते भैया, इसको तो सी बोलते हैं, कोई एग्री होगा क्या? कोई एग्री नहीं होगा, बोलेंगे सर आपका दिमाग खराब हो गया, राइट. एज इट इज सेम थिंग, जैसे कि मैं इस सिंबल को, इस ए को सी नहीं बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास में कोई राइट्स नहीं है. एज इट इज सेम, पाइथन के अंदर काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे INT है, जैसे इफ है, जैसे ब्रेक है. इनको आपके पास में कोई राइट्स नहीं है कि आप इनको रीडिफाइन कर सको. ओके, because these are the reserved word, these are the keywords, they have some special meaning in the programming language. Okay, and we can't redefine them. Okay, so keywords are the reserved word that convey a special meaning to the compiler. Okay, compiler और interpreter जो भी हम यूज में लेते हैं, इनको एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम यूज में लेते हैं कीवर्ड्स को, इसीलिए हम इनको रीडिफाइन नहीं कर पाते हैं. ओके, देन दिस इज द मेन रीजन why we can't use keywords as an identifier. Okay, last rule था identify naming rules के अंदर, keywords can't be used as an identifier. I think मैंने यहाँ पर अब उसको कवर कर लिया है. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है, वो पहले से प्री डिफाइंड है, उनको सिंपली आप यूज में ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे. ओके, नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह से उसको हम यूज में नहीं लेंगे. क्लियर? नाउ see, it is the list of Python's keyword and not, or, pass, print, from, global, if, return. ये जैसे जैसे आपका सिलेबस चलता रहेगा वैसे वैसे ये पाइथन कीवर्ड्स आपके सिलेबस में कवर होते रहेंगे. ओके, एक बार के लिए याद रखना है कि जब भी आप वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर फाइंड आउट करोगे तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना कि ये सारे कीवर्ड्स है तो इनको हम यूज में नहीं ले सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द next one, and the next is the literal. Literals are referred for fixed data value. जैसे कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, मैंने किया a इक्वल टू 50, तो ये a क्या है? ये तो आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है, नेम है तो आइडेंटिफायर हो गया. ये 50 क्या है? ये लिटरल आपका. किस टाइप का लिटरल है? इंटीजर टाइप का लिटरल. लिटरल हमारे पास में काफी सारे टाइप के हैं, वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, नाउ लिटरल्स, any fixed value that we have used in the program is the literal. Okay, like a equal to 50 हमने किया, 50 literal हो गया. एक वेरिएबल लिया मैंने s इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कर दिया abc, तो यहाँ पर ये abc क्या हो गया? लिटरल हो गया. एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसके आगे मैंने ट्रू लिख दिया, तो ये क्या हो गया? बुलियन लिटरल हो गया. एक स्पेशल लिटरल भी होता है नन, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ओके. सो लिटरल्स बेसिकली है क्या चीज? लिटरल्स आर रेफर्ड फॉर फिक्स डेटा वैल्यू, फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं. देन वी हैव वैरायटी ऑफ लिटरल्स. जैसे अभी ये तो बताया मैंने कि ए इक्वल टू 50 है तो क्या हो भाई? ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स. वी हैव स्ट्रिंग लिटरल. सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स है क्या चीज. सो मैंने ये चीज पहले भी मेंशन की थी. Anything that is included in the single, double and triple quotes will be considered as a string. So मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना s इक्वल टू abc, so ये डबल कोट्स में है ना, so आप यहाँ पर डबल कोट्स की बजाय सिंगल कोट्स भी यूज में ले सकते हो, आप ये भी कर सकते हो. आपने डबल कोट्स यूज में लिया, ये भी करेक्ट है, और आपने ट्रिपल कोट्स के अंदर इसको यूज में लिया तो भी ये करेक्ट है. अब ये ट्रिपल कोट्स डबल कोट्स वाले भी हो सकते हैं, 3. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट. सो ये क्या है?
ये स्ट्रिंग है, तो आपने कहीं भी प्रोग्राम के अंदर कहीं स्ट्रिंग लिटरल, कहीं भी आपने सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स यूज में लिए हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी ऑफ टू टाइप। स्ट्रिंग में हमारे पास में दो टाइप की है, एक तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, एक मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है। नेम से ही पता लग रहा है, एक लाइन के अंदर है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गई। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग में मल्टीपल लाइंस रहेंगी, बट उनको क्रिएट करने का और उनकी लेंथ फाइंड आउट करने का डिफरेंट डिफरेंट वे है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास में स्ट्रिंग पूरा एक चैप्टर है हमारे पास में, टेक्स्ट हैंडलिंग दोनों के अंदर, CS एंड IP, तो तब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में, और भी काफी डिटेल्स हैं, पूरा चैप्टर है। नाउ आफ्टर दैट न्यूमेरिकल लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में जैसे 50 है, एक न्यूमेरिक लिटरल है, ओके, नंबर है, नंबर्स जितने भी आएंगे चाहे वो डेसिमल हो या फिर यानी कि रियल नंबर हो या फिर इंटीजर नंबर हो। सो 50 क्या है, एक इंटीजर लिटरल है, ओके। हमारे पास में काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिटरल्स हैं। यदि हम न्यूमेरिक लिटरल्स की बात करें, जैसे मैंने लिखा 50, ये क्या है, इंटीजर लिटरल है। यदि मैं यहां पर करता हूं, अब इंटीजर लिटरल के अंदर भी हमारे पास में तीन वैरायटी है। तीन वैरायटी कौन कौन सी है, इंटीजर लिटरल के अंदर, इंटीजर लिटरल के अंदर हमारे पास में आते हैं डेसिमल नंबर्स, जिसका बेस्ड है नंबर सिस्टम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, बेस 10, बेस 8 और बेस 16। बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर्स, बेस 8 ऑक्टल नंबर्स एंड बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर। सो न्यूमेरिकल लिटरल के अंदर जो इंटीजर लिटरल होता है उसकी तीन वैरायटी हैं, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ओके। दीज आर द थ्री टाइप ऑफ इंटीजर लिटरल, ओके। नाउ इंटीजर लिटरल के बाद में आता है आपका फ्लोटिंग लिटरल। फ्लोटिंग लिटरल के अंदर फ्लोट डेटा आता है, जैसे आपको स्टोर करना 50.5, तो ये क्या है, ये फ्लोटिंग नंबर्स है, ठीक है, जिसमें डेसिमल में वैल्यू आती है। अब डेसिमल में वैल्यू भी हम दो टाइप में स्पेसिफाई करते हैं, एक तो फ्रिक्शनल में स्पेसिफाई करते हैं और एक एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में स्पेसिफाई करते हैं, तो दोनों को ये सपोर्ट करता है, ओके। ई के साथ में हम स्पेसिफाई करते जैसे 10E5, इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, ओके। नाउ हमारे पास में पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, जिसके अंदर इमेजनरी और रियल और इमेजनरी पार्ट होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप यूज में ले सकते हो न्यूमेरिकल लिटरल के अंदर, ऑलराइट। नाउ आफ्टर दैट वी हैव बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल्स स्पेशल टाइप के लिटरल्स होते हैं जो अपने पास में दो कीवर्ड रखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ध्यान रखना टी और एफ दोनों कैपिटल हैं इसके अंदर, टी और एफ दोनों कैपिटल हैं, ओके। बूलियन लिटरल्स हम यूज में लेते हैं। देन स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल इज द नन, एन कैपिटल रहेगा, नन इज द स्पेशल लिटरल। नन लिटरल होता क्या है, सपोज आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, या फिर आप उसको एम्पटी रखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको नन स्पेसिफाई करोगे, क्लियर है। नाउ लिटरल कलेक्शंस, ठीक है, ये हमारे पास में 5 टाइप के लिटरल्स रहेंगे, क्लियर। नाउ आफ्टर द लिटरल we have next topic. I will give one demo for the literals. एक प्रोग्राम हम करेंगे लिटरल्स को यूज में लेके, तब और डिटेल से डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पंचुएटर्स। पंचुएटर्स जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश के अंदर, क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं। पंचुएटर्स भी कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए यूज में लेते हैं, बट डेफिनेटली हर एक सिंबल का एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। These are the symbols that are used to organize the program sentence structure, ठीक है। जैसे कहाँ पर आपको कोलन यूज में लेना है, कहाँ पर आपको कॉमा यूज में लेना है, कोलन यूज में लेना है, ठीक है, इस टाइप में। ब्रैकेट्स कहाँ पर यूज में आएगा, हैश सिंबल क्यों यूज में लेते हैं, कमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, कहाँ पर आपको डबल कोट्स सिंगल कोट्स यूज में लेने हैं, तो ये सभी सिंबल्स हम यूज में लेते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, तो इन सभी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, पंचुएटर्स बोलते हैं, ओके। Now, after the punctuator, the last type of token is operator. Operators are the symbols. ये हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर ऑलरेडी यूज में ले चुके हैं,
ऑपरेटर्स, हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था, तो ये सभी सिंबल्स थे, क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. सो इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, operators are the symbols and words that perform a specific task when we apply them on the data. The data on which operators are applied are known as operands. Like see in this example, a plus b. So here, what are the a and b? These are the two data. So these are the two data. That means these are the operands, and plus is the operator. ये plus क्या है यहाँ पर operator रहेगा. Clear है? So here, if you see, according to the definition, suppose that if I have written here a into b, so here a and b are the operands and it is operator. Okay, this is the operator. We have variety of operators and this is very important topic. एंड मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटर और डेटा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. अभी इस वीडियो के अंदर इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे. ये हमने ऑपरेटर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं. दीज आर द सिंबल्स और वर्ड एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. ओके, एंड द डेटा ऑन विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड आर नोन एज ऑपरेंड्स. ये ए और बी क्या है, ऑपरेंड हो गया. Then according to the operands, we have three types of operators also, unary, binary and ternary. इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. We have variety of operators according to their working, according ठीक है. जितने ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको दो ऑपरेंड चाहिए, किसको तीन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में ऑपरेटर्स की कैटेगरी है. और कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कुछ मेमोरी को चेक करते हैं, मेंबरशिप को चेक करते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे. ओके, नाउ till now in this video we have covered what are the character set and what are the tokens. These 2 points we have covered. Okay, now the next point is, and the next and very important topic, that is variable. Okay, काफी इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल. देखिए, आपको कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करनी है. सपोज दैट आपके पास में एक पेन ड्राइव है और उसके अंदर 5 और 10 मूवीज रखी हुई हैं. आपको फिलहाल के लिए टाइम नहीं है, इन फ्यूचर आप उसको देखना चाह रहे हो, पेन ड्राइव रिटर्न करनी है किसी को, तो हम क्या करते हैं, उसको उस पेन ड्राइव को हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको फ्यूचर में यूज में ले सकें, उस डेटा को एक्सेस कर सकें. बट उस डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें क्या चीज रिक्वायर है, हमें रिक्वायर है मेमोरी. ओके, आपने उसको पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर दिया. ये तो हो गई सेकेंडरी स्टोरेज की बात. बट जब भी हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो कंप्यूटर की मेमोरी यूज में ली जाती है वो होती है रैम मेमोरी. कौन सी मेमोरी होती है वो? रैम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं. देन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता होती है क्योंकि रैंडम है. आज आपने एक वैल्यू ली 10, ए इक्वल टू 10, तो आज तो ये 10 कहीं और स्टोर है, नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कहीं दूसरी जगह पर जाके स्टोर होगी. ठीक है, तो इस 10 को यदि एक्सेस करना है तो हम क्या यूज में लेते हैं, उसका नेम यूज में लेते हैं ए. ये किसको रेफर करता है, ये 10 को रेफर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, एक मेमोरी लोकेशन को हमने नेम प्रोवाइड किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर यदि हम वेरिएबल्स की बात करें तो वहां पर जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था और पाइथन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा चेंज है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है. इसको हमें डिटेल से देखना है और काफी अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल. Variable are the named storage location that refer to a value and whose value can be changed during the program execution. Variable basically होगा क्या, एक named storage location होगी जो अपने पास में एक वैल्यू रखती है, ये उस वैल्यू को रेफर करता है. ठीक है, यू कैन से लाइक आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए किसको रेफर कर रहा है, एक मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, इसका एक एड्रेस होगा, उसके पास में 10 है, सपोज दैट ये इसका एड्रेस है. ठीक है, तो ये इसको रेफर कर रहा है, राइट.
तो एक इसको रेफर कर रहा है, इस एड्रेस को रेफर कर रहा है ना कि इस 10 को, ये 10 जहां पर स्टोर है उसका एड्रेस क्या है, ये उसको रेफर करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। एंड व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ ए, यू कैन चेंज इट। जैसे आगे जाके आपने ए इक्वल टू 50 किया, तो क्या करेगा, अब ए का ये जो लिंक है ये तो हट जाएगा, और एनीवेयर कहीं भी रैम के अंदर 50 स्टोर होगा, ये उसको इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। सपोज दैट ये ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है, तो ये इसको इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? ये एड्रेस मैं रैंडम ले रहा हूं ऐसे ही। क्लियर? नाउ वेरिएबल के ऊपर काफी सारी चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। इन पाइथन एवरी एलिमेंट इज टर्म एज एन ऑब्जेक्ट। सो वेरिएबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है। अब बात करते हैं, जैसे देखिए हमें यदि सी के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर सी प्लस प्लस में वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हम क्या करते हैं, इंट ए इक्वल टू 50 देन सेमीकोलन। ये किया हमने। आईएनटी क्या है, डेटा टाइप। ए क्या है, वेरिएबल का नेम और आइडेंटिफायर हो गया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई। बट पाइथन के अंदर सिंपली क्या होता है, आपको ये स्पेसिफाई करना है, ए इक्वल टू 50, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ओनली ए इक्वल टू 50, नो नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप। हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपने कोई भी एक नेम लिया, उसको कोई वैल्यू असाइन करवाई, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर? नाउ we will discuss example of variable with the demo. Okay, so ये तो प्री डिफाइंड एग्जाम्पल है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, इसकी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल की। बट बिफोर दैट सी हाउ वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल। डिफरेंट वे कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हमने ये जो स्टेटमेंट है ना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये पावर ऑफ पाइथन है। हमने क्या किया, तीन वेरिएबल है, तीनों को एक ही वैल्यू असाइन करवा दी 10, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तीनों के पास में क्या वैल्यू आ गई, 10 वैल्यू आ गई एक साथ तीनों वेरिएबल को। इसका मीनिंग क्या है पता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमने ये कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड सी, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसको वो 10 को रेफर कर रहे हैं, तीनों ही 10 को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 220.4 एंड हाई फ्रेंड्स। सो इसमें क्या होगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन होगी। सो 200 किसके पास में जाएगा, सबसे पहले तो 200 जाएगा ए के पास में, 20.4 जाएगा बी के पास में, हाई फ्रेंड्स जाएगा सी के पास में, ठीक है। सो ये वे हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सिंपली तो हम करते ही हैं, जैसे हमने a इक्वल टू 10 किया, b इक्वल टू 20.4 कर दिया, c इक्वल टू हाई फ्रेंड्स कर दिया। ओके, बट एक ही लाइन के अंदर यदि इन तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो कौन कौन से वे हैं हमारे पास में, ये उसके लिए, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड सी, जो पाइथन है, मैंने अभी ये जो चीज इंडिकेट करी है आपको, ये बेसिकली है क्या चीज, ये तीनों एक ही वैल्यू, एक ही मेमोरी को एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम इस ए के पास में वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होता है, कैसे वो डेटा असाइन होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पाइथन में जो वेरिएबल्स है ना, जो डेटा है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें, 9 है, कौन से के ऊपर है, 15600 के ऊपर है, 10 है 15616 के ऊपर है। तो ये सभी क्या है, ये रैम की एड्रेस है, ये सभी क्या है, एड्रेस ऑफ रैम है। ओके, इनके ऊपर ये डेटा ऑलरेडी सेव रहता है, जो भी हम फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं। देखिए रीड कीजिए इस स्लाइड को। द पाइथन प्री लोडेड सम कॉमनली यूज्ड वैल्यू इन द मेमोरी एंड ईच वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी हैज यूनिक मेमोरी एड्रेस। तो ये जो नॉर्मली हम प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज यूज में लेते हैं, उन सभी को पाइथन पहले से ही अपनी मेमोरी के अंदर सेव करके रखता है एट द स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, व्हेन यू राइट a इक्वल टू 10, सो 10 क्या, ये a क्या करेगा, इस 10 वाले मेमोरी एड्रेस को इंडिकेट करेगा लाइक दिस। ओके, वेरिएबल a रेफरिंग टू द लोकेशन ऑफ 15616। ओके,
दैट कंटेन वैल्यू 10, तो ये इसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा। अब आगे जाके यदि आपने a इक्वल टू 12 किया तो क्या करेगा, a किसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा, ये 12 को रेफर करना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सी वही चीज है, व्हेन यू गिव, पहले था a इक्वल टू 10, पहले था a इक्वल टू 10, तब तो ये किसको इंडिकेट कर रहा था, इसको इंडिकेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने a इक्वल टू 11 किया तो ये किसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा, इसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो जनरली बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की यदि हम बात करें, उनमें क्या था, वेरिएबल की जो लोकेशन होती थी वो फिक्स होती थी। जैसे मैंने अभी बताया था इंट a इक्वल टू 10 हमने किया तो a के पास में 10 आ गया। यदि हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर a इक्वल टू आगे 20 कर दिया तो 10 रिप्लेस्ड बाय द 20, 10 इज रिप्लेस्ड बाय द 20, केवल यही होता। तो उसमें वेरिएबल अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता, बट यहाँ पर क्या है, पाइथन वेरिएबल के पास में कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है जब जब हमने उसकी नई वैल्यू साइन करवाई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आगे जाके हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। एक तो वेरिएबल की टाइप क्या होती है, वेरिएबल की आईडी क्या है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ये तीन जो चीजें हैं, इनमें आईडी की बात हमने कवर की है, बाकी और भी काफी सारी चीजें आएंगी, अभी हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन एक वेरिएबल का एग्जांपल भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। ओके, देन सी की एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेरिएबल, अभी बात कर रहा था मैं इसके बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं वेरिएबल के, वेरिएबल बेसिकली एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हो गई, एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन को रेफर कर रहा है। ठीक है, सो देखिए वेरिएबल के तीन की एट्रीब्यूट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वन इज द टाइप ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल है, और उसको कैसे उसकी डेटा टाइप कैसे हम पता करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है और उसकी आईडी क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा a इक्वल टू 20, तो 20 तो क्या होगी, तीन चीजों की बात हो रही है ना। 20 ये तो क्या होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू होगी, मींस वेरिएबल किसको रेफर करवा रहा है, 20 वैल्यू को रेफर करवा रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसकी टाइप की, ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, ये टाइप होगी उसकी। अब ये टाइप कैसे पता करेंगे, टाइप को पता करने के लिए हमारे पास में एक टाइप नेम से प्री डिफाइंड फंक्शन है। टाइप नेम से क्या है, फंक्शन है जिसको आप यूज में ले सकते हो। ओके, देन अभी एक चीज मैंने बताई थी, पाइथन के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ये वेरिएबल किस टाइप का है, उसको कैसे पता करना है। आईडी, आईडी का मीनिंग होता है एड्रेस, ये 20 कहां पर स्टोर है, यानी कि ये जो वेरिएबल ए है ये कौन से एड्रेस को रेफर कर रहा है, यदि आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो उसको हम बोलते हैं आईडी। ठीक है, वन बाय वन इनकी बात करते हैं। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ वेरिएबल, टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल वी हैव टू यूज टाइप फंक्शन। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए, हमने क्वांटिटी नेम से एक वेरिएबल लिया है और इस क्वांटिटी को यदि हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या देगा, ये वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देगा। ठीक है, यदि हम टाइप की बात करें तो टाइप फंक्शन आपको यूज में लेना होगा। इसकी टाइप यदि आपको यूज में लेनी है तो आपके पास में टाइप फंक्शन है, टाइप फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा। और आईडी ऑफ वेरिएबल, टू एक्सेस द आईडी ऑफ वेरिएबल व्हाट वी हैव टू यूज आईडी फंक्शन, हम आईडी फंक्शन को यूज में लेंगे। आई हैव कवर्ड इन द लास्ट स्लाइड। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। सो फॉर दैट फर्स्टली आई एम राइटिंग द कोड। ओके, मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10। ओके, देन यदि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, सिंपली प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट a, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका आउटपुट आएगा 10। दैट मीन्स ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यदि मैं प्रिंट करता हूं टाइप a, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा क्लास इंट।
इंटीजर टाइप का डेटा है। ओके, देन यदि मेरे को इसकी आईडी को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, आईडी ऑफ ए, देन यहाँ पर एक नंबर आएगा, एक एड्रेस आएगा। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो एड्रेस क्या होगा। ओके, सो लेट्स सी, एक इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए, हमने एक ए नेम का वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू 10 लिया, बी नेम से एक वेरिएबल है 20.5 कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स ले रहा हूं मैं यहाँ पर, 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं। ओके, सो इफ आई राइट प्रिंट a comma b comma c, so here I am trying to access the value of variable. I can write here, okay, value of variable. Okay, variables की value को हमने access किया। Now if you want to display the data type, print, then type of a is, how can we access, type के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये क्या करेगा, वेरिएबल के टाइप को डिस्प्ले करेगा, किस टाइप का वेरिएबल है, a। ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी टाइप ऑफ b, यदि आपको b की टाइप को डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना होगा, टाइप ऑफ b करेंगे। दिस इज द वे हाउ टू यूज द टाइप फंक्शन। देन टाइप ऑफ c इज, किस टाइप का डेटा टाइप होगा, सो टाइप के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। क्लियर? Now, if you want to check ID of these variables, okay, so what we have to write, print address of a each. Now, I will show the ID address of the a, okay, then पहले हम इसको रन करेंगे, उसके बाद में a और b की वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे इसका डेटा एड्रेस भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ इस पूरे कंटेंट को। In place of a, specify b, so the ID of b. All right, now the address of c. So हमने यहाँ पर जो की एट्रीब्यूट्स देखे थे वेरिएबल्स के, मैं इसको एक नेम दे रहा हूँ, वेरिएबल var वेरिएबल दे दिया। सो सी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल 10 ए के पास में था, 20.5 बी के पास में था, हेलो सी के पास में था। सो द टाइप ऑफ ए इज, द टाइप ऑफ ए इज class int. Class int क्यों है, because each thing in the Python will be considered as an object. So b किस टाइप का है, float टाइप का है, और c किस टाइप का, string टाइप का था, so class str. Clear? Now see the address. Address of a is, ये a का एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस क्या है, ये रैम के अंदर लोकेशन है जहां पर a रेफर किया जा रहा है। मैंने पहले बोला था मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, ये b का एड्रेस है नेक्स्ट वाला, और ये c का एड्रेस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। हमने एड्रेसेस देखे इनके, यहाँ पर एड्रेसेस देख लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू का, ए की वैल्यू के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कर रहा हूँ ए इक्वल टू a+4 कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू चेंज होगी, और यदि वैल्यू चेंज होगी तो इसका एड्रेस भी चेंज होना चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके एड्रेस को वापस से प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, करेक्ट है, रन इट अगेन। अब देखिए, पहले जो ए का एड्रेस था वो था लास्ट में 440, अब क्या आ गया, 568 आ गया, एड्रेस चेंज हो गया। जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी,
तो हमारा एड्रेस भी चेंज होगा। क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आई हैव कवर्ड हियर 3 थिंग्स। 3 चीजें मैंने कवर किए। टाइप कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, कैसे एक्सेस करेंगे, उसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कैसे वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। ठीक है। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द पाइथन इज डायनेमिक टाइपिंग। कि डायनेमिक टाइपिंग है क्या चीज, पहले तो इसकी बात करते हैं। डायनेमिक टाइपिंग वैसे देखिए, मैंने यहां पर a इक्वल टू 10 किया हुआ है। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं यदि a इक्वल टू abc कर देता हूं, एक बार के लिए मैं C प्रोग्राम की बात करता हूं। यदि मैंने किया int a इक्वल टू 10, क्या होगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। आगे जाके यदि मैंने यहाँ पर 10.5 असाइन किया तो ये एरर शो करेगा। यदि हम C और C++ की बात करते हैं, ये C और C++ है। जावा की भी बात करें तो जावा में भी ऐसा ही होता है। बट पाइथन क्या है, पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप तो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डेटा टाइप तो ऑटोमेटिक लेता है। सही है। ए इक्वल टू हमने 10 किया तो ये क्या टाइप दे रहा था, क्लास इंट दे रहा था। सही है। आगे जाके आपने इसको अंदर थोड़ा सा चेंज किया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर 10.5 कर दिया, तो पाइथन कभी कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। क्या हो रहा है, पहले तो ए इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, ये रेफर करवा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये फ्लोट टाइप के डेटा को रेफर करवाएगा। आगे जाके आपने ए इक्वल टू हेलो कर दिया, अब क्या करेगा ये क्या करेगा, ये अब स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रेफर करेगा। तो एक ही वेरिएबल को एक ही प्रोग्राम के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को असाइन करवा सकते हो। पाइथन कभी कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डायनेमिक टाइपिंग। आई थिंक ओवर रिटन हो रखा है, बट आई थिंक इतना कुछ है नहीं कि समझ में ना आए। ओके। नाउ पाइथन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, जब हम उनको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, आगे जाके यदि हम उसकी डेटा टाइप के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो पाइथन कोई एरर नहीं करता। इसी चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। क्लियर? ओके, यू कैन सी इट द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, क्लियर? नाउ जस्ट check it with the practical also. ओके, नाउ a इक्वल टू a प्लस 4 कर दिया। अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू को वापस से चेंज कर रहा हूँ। a इक्वल टू मैंने कर दिया abc कर दिया, चलो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, एरर नहीं देना चाहिए ना। और b इक्वल टू मैंने यहाँ पर कर दिया, उसके पास में फ्लोट है ऊपर, तो मैंने ओनली इंटीजर कर दिया। यदि प्रोग्राम एरर रिटर्न करेगा, चलो मैं प्रिंट ए और बी कर देता हूँ, ए कॉमा बी। यदि प्रोग्राम एरर रिटर्न करेगा दैट मीन्स डायनेमिक टाइपिंग नहीं हो रही है, अदरवाइज डायनेमिक टाइपिंग हो रही है। ओके, रन कीजिए। ओके, प्रोग्राम ने कोई एरर रिटर्न नहीं किया। एबीसी और 20 आ रहा है लास्ट में। एबीसी और 20 किसके लिए आ रहा है, देखिए ए की वैल्यू हमने क्या की थी, हमने ए की वैल्यू को एबीसी किया था, प्रिंट ए किया तो एबीसी आ गया, बी 20 आ रहा है, बी 20 आ रहा है, वैल्यू चेंज हो गई, वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज हो गई। यदि आप टाइप ऑफ वेरिएबल्स देखना चाह रहे हो कि ए अब किसको रेफर कर रहा है, बी किसको रेफर कर रहा है, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। देखिए ए अब किसको रेफर कर रहा है, ए एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रेफर कर रहा है, जबकि ऊपर ये किसको रेफर कर रहा था, इंटीजर टाइप के डेटा को। और बी यहाँ पर लास्ट में इंटीजर कर रहा है, उससे पहले फ्लोट कर रहा था। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल डिफरेंट टाइप के डेटा को आपने स्टोर करवा दिया। ठीक है, देन इसी चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। जबकि ये चीज पॉसिबल नहीं है सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर। सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर तो ये सीधा सीधा एरर रिटर्न करेगा। ओके, क्लियर है? नाउ आई थिंक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डायनेमिक टाइपिंग है क्या चीज, ये चीज समझ में आ गई होगी। एक स्क्रीनशॉट है, इससे बेटर प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल से हम कवर कर चुके हैं इसको। ओके, बट यदि आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो आप इसको जूम करके डेफिनेशन नोट कर सकते हो। नाउ
The next topic is data type in Python. I am not going to cover in this video because काफी बड़ा टॉपिक है. So data type and operator, इस चैप्टर के अंदर हमारे दो टॉपिक बचते हैं, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर. इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. बट उससे पहले इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास में जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो. ओके, आप मेरे को मेल कीजिए. देन डेफिनेटली like, subscribe the channel, like the video, and thanks for the watching, and keep connected. That's all for today in this video. Thank you very much. Bye, take care. Now we will discuss example of variable with the demo. Okay, so ये तो predefined example है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, इसकी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं हम example of variable की. But before that, see how we can declare the variable. डिफरेंट वे कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. तो सबसे पहले देखिए, हमने ये जो स्टेटमेंट है ना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये पावर ऑफ पाइथन है. हमने क्या किया, तीन वेरिएबल है, तीनों को एक ही वैल्यू असाइन करवा दी 10. a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है. तीनों के पास में क्या वैल्यू आ गई, 10 वैल्यू आ गई एक साथ तीनों वेरिएबल को. इसका मीनिंग क्या है पता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमने ये कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड सी, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं. इसको वो 10 को रेफर कर रहे हैं, तीनों ही 10 को रेफर कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 220.4 एंड हाई फ्रेंड्स. तो इसमें क्या होगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन होगी. सो 200 किसके पास में जाएगा, सबसे पहले 200 जाएगा ए के पास में, 20.4 जाएगा बी के पास में, हाई फ्रेंड जाएगा सी के पास में. ठीक है. सो ये वे हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, सिंपली तो हम करते ही हैं, जैसे हमने ए इक्वल टू 10 किया, बी इक्वल टू 20.4 कर दिया, सी इक्वल टू हाई फ्रेंड्स कर दिया. ओके, बट एक ही लाइन के अंदर यदि इन तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो कौन कौन से वे हैं हमारे पास में, ये उसके लिए. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, सी जो पाइथन है, मैंने अभी ये जो चीज इंडिकेट करी है आपको, ये बेसिकली है क्या चीज, ये तीनों एक ही वैल्यू, एक ही मेमोरी को एक्सेस करवा रहे हैं. ठीक है ना. तो जब हम इस ए के पास में वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होता है, कैसे वो डेटा असाइन होता है. देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पाइथन में जो वेरिएबल्स है ना, जो डेटा है वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर रहते हैं. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें, 9 है, कौन से के ऊपर है, 15600 के ऊपर है. 10 है, 15616 के ऊपर है. तो ये सभी क्या है, ये रैम की एड्रेस है, ये सभी क्या है, एड्रेस ऑफ रैम है. ओके, इनके ऊपर ये डेटा ऑलरेडी सेव रहता है, जो भी हम फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं. देखिए, रीड कीजिए इस स्लाइड को. द पाइथन प्री लोडेड सम कॉमनली यूज्ड वैल्यू इन द मेमोरी एंड ईच वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी हैज यूनिक मेमोरी एड्रेस. तो ये जो नॉर्मली हम प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज यूज में लेते हैं, उन सभी को पाइथन पहले से ही अपनी मेमोरी के अंदर सेव करके रखता है एट द स्पेसिफिक लोकेशन. ओके, व्हेन यू राइट a इक्वल टू 10, सो 10 क्या, ये a क्या करेगा, इस 10 वाले मेमोरी एड्रेस को इंडिकेट करेगा लाइक दिस. ओके, वेरिएबल a रेफरिंग टू द लोकेशन ऑफ 15616, ओके, दैट कंटेन वैल्यू 10. तो ये इसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा. अब आगे जाके यदि आपने a इक्वल टू 12 किया तो क्या करेगा, a किसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा, ये 12 को रेफर करना स्टार्ट कर देगा. एक्चुअल में क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसका एड्रेस चेंज हो रहा है. ठीक है. सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सी वही चीज है. व्हेन यू गिव, पहले था a इक्वल टू 10, पहले था a इक्वल टू 10, तब तो ये किसको इंडिकेट कर रहा था, इसको इंडिकेट कर रहा था. लेकिन जैसे ही आपने a इक्वल टू 11 किया तो ये किसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा, इसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो जनरली बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की यदि हम बात करें, उनमें क्या था, वेरिएबल की जो लोकेशन होती थी वो फिक्स होती थी. जैसे मैंने अभी बताया था, इंट a इक्वल टू 10 हमने किया तो a के पास में 10 आ गया. यदि हमने
सी प्रोग्रामिंग के अंदर a इक्वल टू आगे 20 कर दिया तो 10 रिप्लेस्ड बाय द 20, 10 इज रिप्लेस्ड बाय द 20, केवल यही होता। तो उसमें वेरिएबल अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता, बट यहाँ पर क्या है, पाइथन वेरिएबल के पास में कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है जब जब हमने उसकी नई वैल्यू साइन करवाई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आगे जाके हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। एक तो वेरिएबल की टाइप क्या होती है, वेरिएबल की आईडी क्या है, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ये तीन जो चीजें हैं, इनमें आईडी की बात हमने कवर की है, बाकी और भी काफी सारी चीजें आएंगी। अभी हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन एक वेरिएबल का एग्जांपल भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। ओके, देन सी की एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेरिएबल। अभी बात कर रहा था मैं इसके बारे में, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं वेरिएबल के। वेरिएबल बेसिकली एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हो गई, एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन को रेफर कर रहा है, ठीक है। सो देखिए, वेरिएबल के तीन की एट्रीब्यूट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वन इज द टाइप ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल है, और उसको कैसे उसकी डेटा टाइप कैसे हम पता करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, और उसकी आईडी क्या है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा a इक्वल टू 20, तो 20 तो क्या होगी, तीन चीजों की बात हो रही है ना। 20 ये तो क्या होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। मींस वेरिएबल किसको रेफर करवा रहा है, 20 वैल्यू को रेफर करवा रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसकी टाइप की। ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, ये टाइप होगी उसकी। अब ये टाइप कैसे पता करेंगे, टाइप को पता करने के लिए हमारे पास में एक टाइप नेम से प्री डिफाइंड फंक्शन है। टाइप नेम से क्या है, फंक्शन है जिसको आप यूज में ले सकते हो। ओके, देन अभी एक चीज मैंने बताई थी, पाइथन के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ये वेरिएबल किस टाइप का है, उसको कैसे पता करना है। आईडी, आईडी का मीनिंग होता है एड्रेस। ये 20 कहां पर स्टोर है, यानी कि ये जो वेरिएबल ए है ये कौन से एड्रेस को रेफर कर रहा है, यदि आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो उसको हम बोलते हैं आईडी, ठीक है। वन बाय वन इनकी बात करते हैं, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ वेरिएबल, टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल वी हैव टू यूज टाइप फंक्शन। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए, हमने क्वांटिटी नेम से एक वेरिएबल लिया है, और इस क्वांटिटी को यदि हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या देगा, ये वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देगा, ठीक है। यदि हम टाइप की बात करें तो टाइप फंक्शन आपको यूज में लेना होगा। इसकी टाइप यदि आपको यूज में लेनी है तो आपके पास में टाइप फंक्शन है, टाइप फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा। और आईडी ऑफ वेरिएबल, टू एक्सेस द आईडी ऑफ वेरिएबल व्हाट वी हैव टू यूज आईडी फंक्शन, हम आईडी फंक्शन को यूज में लेंगे। आई हैव कवर्ड इन द लास्ट स्लाइड। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। सो फॉर दैट firstly I am writing the code. Okay, मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10। ओके, देन यदि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, सिंपली प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट a, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका आउटपुट आएगा 10। दैट मीन्स ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यदि मैं प्रिंट करता हूं टाइप a, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा क्लास इंट, इंटीजर टाइप का डेटा है। ओके, देन यदि मेरे को इसकी आईडी को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, आईडी ऑफ ए। देन यहां पर एक नंबर आएगा, एक एड्रेस आएगा। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो एड्रेस क्या होगा। ओके, सो लेट्स सी, एक इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए, हमने एक ए नेम का वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू 10 लिया, बी नेम से एक वेरिएबल लिया 20.5 कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तीन डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं। ओके, सो इफ आई राइट प्रिंट a, b, c,
So here I am trying to access the value of variable. I can write here, okay, value of variable. Okay, वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने एक्सेस किया. नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा टाइप प्रिंट, देन टाइप ऑफ ए इज, हाउ कैन वी एक्सेस, टाइप के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ये क्या करेगा, वेरिएबल के टाइप को डिस्प्ले करेगा. किस टाइप का वेरिएबल है, ए. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी टाइप ऑफ बी, यदि आपको बी की टाइप को डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना होगा, टाइप ऑफ बी करेंगे. दिस इज द वे हाउ टू यूज द टाइप फंक्शन. देन टाइप ऑफ सी इज, किस टाइप का डेटा टाइप होगा, सो टाइप के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. क्लियर. नाउ if you want to check id of these variables, okay, so what we have to write, print address of a each. Now I will show the id address of the a. Okay, then पहले हम इसको रन करेंगे, उसके बाद में a और b की वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे इसका डेटा एड्रेस भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है. मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ इस पूरे कंटेंट को. In place of a, specify b, so the id of b. All right. Now the address of c. So हमने यहाँ पर जो की एट्रीब्यूट्स देखे थे वेरिएबल्स के, मैं इसको एक नेम दे रहा हूँ, वेरिएबल var वेरिएबल दे दिया. So see the value of वेरिएबल 10 ए के पास में था, 20.5 बी के पास में था, हेलो सी के पास में था. So the type of a is, the type of a is class int. Class int क्यों है, because each thing in the Python will be considered as an object. So b किस टाइप का है, float टाइप का है, और c किस टाइप का, string टाइप का था, so class str. Clear. Now see the address. Address of a is, ये a का एड्रेस है. ये पूरा एड्रेस क्या है, ये रैम के अंदर लोकेशन है जहां पर a रेफर किया जा रहा है. मैंने पहले बोला था मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं. ये b का एड्रेस है नेक्स्ट वाला, और ये c का एड्रेस है. ठीक है. अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं. हमने एड्रेसेस देखे इनके, यहाँ पर एड्रेसेस देख लिए. अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू का, ए की वैल्यू के अंदर चेंजेस कर रहा हूं. मैं यहाँ पर कर रहा हूं ए इक्वल टू a+4 कर दिया. ठीक है, तो वैल्यू चेंज होगी, और यदि वैल्यू चेंज होगी तो इसका एड्रेस भी चेंज होना चाहिए ना. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसके एड्रेस को वापस से प्रिंट करवा रहा हूं. ओके, करेक्ट है. रन इट अगेन. अब देखिए, पहले जो ए का एड्रेस था वो था लास्ट में 440. अब क्या आ गया, 568 आ गया. एड्रेस चेंज हो गया. जब भी हमारी वैल्यू चेंज होगी तो हमारा एड्रेस भी चेंज होगा. क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. आई हैव कवर्ड हियर 3 थिंग्स. 3 चीजें मैंने कवर की है. टाइप कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, कैसे एक्सेस करेंगे, उसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कैसे वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है. ठीक है. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द पाइथन इज डायनेमिक टाइपिंग. कि डायनेमिक टाइपिंग है क्या चीज, पहले तो इसकी बात करते हैं. डायनेमिक टाइपिंग, वैसे देखिए, मैंने यहां पर a इक्वल टू 10 किया हुआ है. इसी प्रोग्राम के अंदर मैं यदि a इक्वल टू abc कर देता हूं
एक बार के लिए मैं सी प्रोग्राम की बात करता हूँ। यदि मैंने किया int a इक्वल टू 10, क्या होगा? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। आगे जाके यदि मैंने यहाँ पर 10.5 असाइन किया तो ये एरर शो करेगा। यदि हम सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं, ये सी और सी प्लस प्लस है। जावा की भी बात करें तो जावा में भी ऐसा ही होता है। बट पाइथन क्या है? पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप तो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डेटा टाइप तो ऑटोमेटिक लेता है। सही है, ए इक्वल टू हमने 10 किया तो ये क्या टाइप दे रहा था? क्लास इंट दे रहा था। सही है। आगे जाके आपने इसको अंदर थोड़ा सा चेंज किया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर 10.5 कर दिया, तो पाइथन कभी कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। क्या हो रहा है? पहले तो ए इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, ये रेफर करवा रहा है। अब ये क्या करेगा? ये फ्लोट टाइप के डेटा को रेफर करवाएगा। आगे जाके आपने ए इक्वल टू हेलो कर दिया, अब क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये अब स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रेफर करेगा। तो एक ही वेरिएबल को एक ही प्रोग्राम के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को असाइन करवा सकते हो। पाइथन कभी कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डायनेमिक टाइपिंग। आई थिंक ओवर रिटन हो रखा है, बट आई थिंक इतना कुछ है नहीं कि समझ में ना आए। ओके, नाउ पाइथन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, जब हम उनको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, आगे जाके यदि हम उसकी डेटा टाइप के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो पाइथन कोई एरर नहीं करता। इसी चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। क्लियर? ओके, यू कैन सी इट the help of example. Okay, clear? Now just check it with the practical also. Okay, now a इक्वल टू ए प्लस 4 कर दिया। अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू को वापस से चेंज कर रहा हूँ। a इक्वल टू मैंने कर दिया abc कर दिया, चलो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, एरर नहीं देना चाहिए ना। और b इक्वल टू मैंने यहाँ पर कर दिया, उसके पास में फ्लोट है ऊपर, तो मैंने ओनली इंटीजर कर दिया। यदि प्रोग्राम एरर रिटर्न करेगा, चलो मैं प्रिंट ए और बी कर देता हूँ, ए कॉमा बी। यदि प्रोग्राम एरर रिटर्न करेगा दैट मीन्स डायनेमिक टाइपिंग नहीं हो रही है, अदरवाइज डायनेमिक टाइपिंग हो रही है। ओके, रन कीजिए। ओके, प्रोग्राम ने कोई एरर रिटर्न नहीं किया। एबीसी और 20 आ रहा है लास्ट में। एबीसी और 20 किसके लिए आ रहा है? देखिए, ए की वैल्यू हमने क्या की थी? हमने ए की वैल्यू को एबीसी किया था, प्रिंट ए किया तो एबीसी आ गया। बी 20 आ रहा है, बी 20 आ रहा है, वैल्यू चेंज हो गई, वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज हो गई। यदि आप टाइप ऑफ वेरिएबल्स देखना चाह रहे हो कि ए अब किसको रेफर कर रहा है, बी किसको रेफर कर रहा है, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। देखिए, ए अब किसको रेफर कर रहा है? ए एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रेफर कर रहा है, जबकि ऊपर ये किसको रेफर कर रहा था? इंटीजर टाइप के डेटा को। और बी यहाँ पर लास्ट में इंटीजर कर रहा है, उससे पहले फ्लोट कर रहा था। ठीक है, तो ए की वेरिएबल डिफरेंट टाइप के डेटा को आपने स्टोर करवा दिया। ठीक है, देन इसी चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। जबकि ये चीज पॉसिबल नहीं है सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर। सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर तो ये सीधा सीधा एरर रिटर्न करेगा। ओके, क्लियर है? नाउ आई थिंक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डायनेमिक टाइपिंग है क्या चीज, ये चीज समझ में आ गई होगी। एक स्क्रीनशॉट है, इससे बेटर प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल से हम कवर कर चुके हैं इसको। ओके, बट यदि आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो आप इसको जूम करके डेफिनेशन नोट कर सकते हो। नाउ the next topic is data type in Python. I am not going to cover in this video because काफी बड़ा टॉपिक है। So data type and operator, इस चैप्टर के अंदर हमारे दो टॉपिक बचते हैं, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास में जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो। ओके, आप मेरे को मेल कीजिए। देन डेफिनेटली like, subscribe the channel, like the video, and thanks for the watching, and keep connected. That's all for today in this video. Thank you very much. Bye, take care.